جی آج کا میسج بڑا پیار والا میسج ہے غالب کمال کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے خاص طور پہ. جی ہاں، وہ بہت ضروری ہے آج کے میسج کو سمجھنے کے لیے. ان دونوں کا ذکر اور ایوولوشن کا مذہب، چمپینزیز کس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا چمپینزیز کی سنت ہے، کیونکہ چمپینزی غالب کمال کی برادری ہے، ان کی سنت کیا ہے، اس کا ذکر اس ویڈیو میں بڑا ضروری ہے. بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ. غالب کمال کا دعویٰ ہے کہ جیزس کی برتھ ورجن میری سے گاسپلز میں نہیں لکھی ہوئی. اور دوسرا پھر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالر اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ پھر ممکن ہے ریپ ہوا ہوگا مدر میری کا، اور غالب کمال کہتا ہے ڈیفینیٹلی ایسا ہوا ہوگا. تو ان دو دعووں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غالب کمال کے کیا یہ دو دعوے سچے ہیں کہ نہیں. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور پھر میں کہتا ہوں کہ کھوتا کھوتا ہی ہوتا ہے. کھوتے پہ کتابیں رکھ دینے سے کھوتا اسکالر نہیں بن جاتا، اور کھوتا روتا ہے، اور کھوتا روتا نہیں تو کھوتا سوتا ہے. تو یہ کھوتا روتا ہے، اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جیزس کی برتھ ورجن میری سے ہو نہیں سکتی، کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہوا چاروں گاسپلز میں، وہ بھی آپ سنیں گے بھی. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھ بوجھ تو اس کے اندر ہے نہیں. ورجن کا یہ شاید مطلب کنواری کا مطلب بھی نہیں یہ سمجھتا. اس کے علاوہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دکھی ہے کیونکہ اس کو کنواری بیوی نہیں ملی. اس دکھ میں اور اس غصے میں شاید اس نے یہ بات کر دی ہے، کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ چاروں گاسپلز میں خداوند یسوع مسیح کی کنواری مریم سے پیدائش، اس کا ذکر ملتا ہے سیاق و سباب کے ساتھ، مطلب معنی اور مفہوم کے ساتھ. اگر یہ لفظ ڈھونڈ رہا ہے تو اسے اس لفظ کا اگر مطلب پتا ہو، جس کا مطلب ہے مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر پیدائش، اگر یہ اس کو سمجھتا ہے مطلب کو، تو وہ چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور یہ میرا اس کو چیلنج ہے کہ میں چاروں اناجیل میں سے ریفرنس دے سکتا ہوں. تو میں ثبوت دوں گا ریفرنس کے ساتھ، اور میں سائنس میں سے بھی دلیل دوں گا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر ہو سکتی ہے. میں تاریخ میں سے بھی ریفرنس دوں گا. پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھنے کے لیے اور بڑے اچھے طریقے سے ہر اس ایتھیسٹ کے لیے جو ایسے دعوے کرتا ہے جیسے غالب کمال کرتا ہے دعوے، ان سب کے لیے آج کی میری اس ویڈیو میں بڑا اچھا سبق بھی ملے گا، کیونکہ ہم اس بات کو کمپیئر کریں گے، اس کا کمپیریزن کریں گے. غالب کمال کی ماں کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ مجھے پوری امید ہے وہ آج بھی راست باز اور ایماندار ہوں گی، لیکن اس کی بیوی کے ساتھ، تاکہ شاید اس کے دل میں بھی جو سچائی ہے، جو میری بات ہے، جو کلام کی بات ہے، وہ پہنچ سکے. تو سب سے پہلے اس کا کلپ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آگے اپنے بیان کو جاری رکھوں گا. Out of the four gospels don't even mention کہ Jesus was born to a virgin. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. اور جو کرسچینٹی جو گاسپلز کے اوپر ریسرچ ہے، اس کے مطابق یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ ایک لیٹر انکارپوریشن ہے کہ جیزس واز بورن آف اے ورجن. Okay, no, that is a higher possibility. کیونکہ اگر میں تو وہی کہتی ہوں کہ ایک کلٹ میں ہے، ریپ کا سسٹم ہے، یو کین فائنڈ اٹ ٹل ڈیٹ، کہ لڑکیاں اس سے نکل کے پہلی چیز یہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ دا پریسٹ دا ہیڈ ریپڈ اس فار ایئرس،
कि हम छोटे थे, हमें तभी से ग्रूम करा जा रहा था, एक सेक्सुअल ग्रूमिंग हो रही थी कि यू हैव टू सबमिट टू द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द सर्वेंट ऑफ गॉड इज द फादर. तो अगर ये प्रॉब्लम है तो हाउ कैन यू नॉट थिंक कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैरी का भी रेप हुआ हो? देयर इज अ वेरी हाई चांस बाय द हाई प्रीस्ट. और अगर ऐसा हुआ, इसीलिए शायद जीसस या इफ शी एवर. जी, मैं अब मुकद्दसा मरियम के हक में और इसके झूठ को एक्सपोज करने के लिए, जो ये कहता है चारों आना झील में भी जिक्र नहीं है, ये भी इसने झूठ बोला है. खुदावंद यीशु मसीह के मर्द और औरत के मिलाप के बगैर पैदाइश का चारों आना झील में इसके मुताबिक जिक्र नहीं है. ये लफ्ज कुंवारी तलाश करना चाहता है. वही बात है, जाकिर नाइक की बद रूह इसके अंदर काम करती है. जैसे जाकिर नाइक कहता है ना, हमें एक लफ्ज दिखा दो, चाहे उसका मतलब मानी और मफहूम सियाको सबाक के साथ मौजूद हो, लेकिन वो लकीर को पीटता रहता है कि नहीं हमने लफ्ज देखना है. उसी तरह ये भी इसके अंदर जाकिर नाइक की बद रूह आई हुई है, जिसकी बदबू आप महसूस कर सकते हैं. तो इसी तरह ही जो ये कहता है कि ये कुंवारी मरियम से पैदाइश इंटरपोलेशन है, बाद में ऐड की गई है, मेरा इसको चैलेंज है ये इस चीज को साबित करके दिखाए. चारों आना झील में भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है मर्द और औरत के मिलाप के बगैर, मानी और महफूम के साथ. और तारीख में भी जिक्र है, यानी पुराने अहदनामे में उनकी पैदाइश से पहले भी. ये तो इंटरपोलेशन की बात करता है, यसाया नबी की किताब में उससे पहले जिक्र है. और फिर हम देखेंगे कि ये इसको सबूत चाहिए. वो सबूत मुकद्दसा मरियम की शान और इज्जत, उसके हक में मैं सबूत दूंगा, दलीलें दूंगा, और फिर उसी पैमाने से इससे सबूत मांगा जाएगा कि क्या इसकी शादी के वक्त इसकी बीवी, जिसको मैं बड़ी इज्जत से चिंपा बाई कहता हूं, चिंपा चिंपैंजी से, क्योंकि चिंपैंजी इनकी बरादरी है ना, और फिर मैं इनके गूगल गॉड से इनको रेफरेंस दूंगा कि क्या इसकी बीवी चिंपा बाई वो कुंवारी थी कि नहीं इसकी शादी के वक्त इसके साथ, ताकि इस बात को हम बेहतर तौर से समझ सकें, अच्छे तरीके से एक हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें. तो सबसे पहले तो अगर आपको ये मतलब पता चल गया, कुंवारी का मतलब है मर्द और औरत के मिलाप के बगैर, तो यूहन्ना की अंजील में आपको मिलेगा कलाम मुजस्सम हुआ, मोनोगेनेस, बेटा. वही कलाम मुजस्सम हुआ जब खुदा का बेटा उसका टाइटल आ जाता है, तो फिर उसमें महफूम मतलब आ जाता है कुंवारी से पैदाइश का, मर्द और औरत के मिलाप के बगैर. फिर इसी तरह ही लूका की अंजील और मत्ती की अंजील, मैथ्यू और लूक, उन दोनों में भी इसका जिक्र भी मिलता है. और मरियम की गवाही भी हमें मिलती है कि वो कह रही है किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं. और फिर हम उसके मंगेतर, उसके होने वाले शोहर यूसुफ से भी देखते हैं कि वो इस बात का इकरार करता है और कबूल करता है फरिश्ते की आगाही के बाद कि हाँ मैं उसको फिर भी अपनाऊंगा और ये खुदा की कुदरत से है. तो उनकी गवाही भी हमें मिल जाती है, खुदा के कलाम की गवाही भी हमें मिल जाती है, मरियम की गवाही भी हमें मिल जाती है. तारीख से, यसाया की किताब से एक कुंवारी हामला होगी, चाहे उसका आप मतलब जवान हामला होगी कर लें, लेकिन जब आप उसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उसका मतलब कुंवारी बनता है मर्द और औरत के मिलाप के बगैर. फिर हम देखते हैं पैदाइश की किताब में औरत की नस्ल से खुदा शैतान का सर कुचलेगा. यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र सिर्फ एक औरत से, मर्द के बगैर हो रहा है. यहां पर भी हमें पैदाइश की पहली किताब तौरात में भी इसका जिक्र हमारे सामने आ जाता है. यानी अब हमारे सामने सर्टिफिकेट है, रेफरेंस है, टेस्टिमनीज, गवाहियां हैं, और इसके साथ मेडिकल साइंस आज इस बात को मानती है और ये प्रैक्टिस हो रही है. औरत और मर्द के मिलाप के बगैर औरत का हमल ठहरता है उस सलाहियत के साथ जिससे बच्चा पैदा होता है, लेकिन मर्द और औरत के मिलाप के बगैर. आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि ऐसा हो सकता है. औरत और मर्द के मिलाप के बगैर जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो औरत के हमल में मुंतकिल की जा सकती है.
तो फिर ये कैसे हो गया कि खुदा अपनी कुदरत को इस तरीके से नहीं कर सकता, जिस चीज को मेडिकल साइंस भी आज साबित करती है। और फिर इससे बढ़ के दुश्मन इस्लाम, मुसलमान, कुरान, बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट है, एक तरह का दुश्मन है। दुश्मन का बयान यह है कि मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह बिन बाप के, मर्द और औरत के मिलाप के बगैर, यानी हमें दुश्मनों से भी हमारे पास गवाही मौजूद है। तो फिर ये कौन होता है खोता है इतराज करने वाला? इसको दुख है। चिंपैंजी बरादरी जो है, मैं अभी गूगल गॉड का रेफरेंस दूंगा, चंपा बाई का, इसकी बीवी का, कि उसने अपनी बरादरी कम्युनिटी के हर मर्द के पास जाना होता है, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका बाप है, चाहे उसका बेटा है, उस सब के साथ उसने मिलाप करना होता है। तो इसको इस बात का दुख है कि इसको कुंवारी बीवी नहीं मिली। अगर मिली है तो जितने सबूत मैंने दिए हैं, रेफरेंस दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए, लोगों की गवाहियां दिखाए, चिंपा बाई के मां बाप की गवाहियां दिखाए, मैं तो रेफरेंस भी दूंगा। इसने तो कोई रेफरेंस नहीं ना दिया, सिर्फ एक जो है वो हवाई बात की है। और एक और दलील दी है कि जी वो क्रिटिसिज्म सिस्टम के खिलाफ कर रहे थे और वो बागी जहन था खुदावंद यीशु मसीह का, तो ऐसे लगता है जैसे उनकी रेप की पैदाइश थी। अगर ये आपकी दलील है, आपकी दलील, तो इस दलील के मुताबिक तो आप भी इस्लाम के सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हो। तो इसका मतलब क्या आपकी बीवी, आपका बाकी खानदान रेप की पैदाइश है? ये किस तरह की भोंडी दलील है? तो जी इसके साथ हम देखते हैं आगे कि रेफरेंस भी अभी हम देखेंगे, और इससे हम जानना चाहते हैं अपनी बीवी की, चंपा बाई की शादी के वक्त वो कुंवारी थी, उसका किसी और मर्द के साथ मिलाप नहीं था, क्योंकि रेफरेंस हमें यह कहता है कि चंपा बाई अपनी बरादरी के हर मर्द के पास जाती है। इसी चीज पर इनका ईमान है ना कि ये चिंपैंजी की बरादरी में से है। अगर गूगल गॉड से पूछे तो गूगल गॉड भी बताता है कि फीमेल चिंपैंजी अपनी बरादरी, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली के हर मर्द के साथ मिलाप करती है। उसके बाद पता नहीं होता कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसका है। तो अगर गालिब कमाल का कोई बच्चा है तो उसका हम हतमी तौर पर यह बता नहीं सकते कि उसका बाप कौन है। ये सिर्फ इस बात को समझने के लिए, अगर ये इस बात को समझना चाहता है तो। और इसके साथ आज हम सबक क्या सीखते हैं कि एवोल्यूशन आपको जानवर बनाती है, आपको जंगली बनाती है और आपको झूठ बोलना सिखाती है। और इसका इल्मी लेवल मैंने खोल के आपके सामने रख दिया है। और दूसरी तरफ खुदा का कलाम आपकी निजात का बंदोबस्त करता है, आपको जानवर से इंसान बनाने के लिए आपको ऑफर देता है, आपको इनविटेशन देता है। अब ये इसका फैसला आप पे है कि आप जानवर और जंगली रहना चाहते हैं, गालिब कमाल की तरह कम इल्म रहना चाहते हैं, या आप खुदा के निजात के इंतजाम में शामिल होना चाहते हैं जिसके लिए उसका कलिमा मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और वो जलाल आपको भी ऑफर करता है, आप उसके उस जलाल में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए खुदा आपको बरकत दे। आमीन।